edition of Politics First. The Congress has faced an embarrassing defeat in the recent assembly elections. And now there's a challenge from Delhi's new challenger AAP to Congress's Vice President Rahul Gandhi. AAP has proposed that after its leader Arvind Kejriwal decimated Sheila Dikshit in the capital, its other leader Kumar Vishwas could do the same at the national level. सेना रावण की कितनी भी बड़ी हो, चाहे खजाना कुबेर का भी हो, अगर सत्य उतरता है तो सागर पार करके भी अंधकार को पराजित करता है। आम आदमी पार्टी और झाड़ू और अरविंद केजरीवाल के बढ़ते हुए क्रेज से कांग्रेस तो पास सोई चुकी थी, वो तो मैदान छोड़ ही चुकी है। इस सरकार का विरोध करना जरूरी है, ये आपातकाल के आसार है, निषेधाज्ञा तोड़ दी गई। लेकिन लड़ने जाऊंगा, अगर जनता लड़ाएगी तो जनता बताएगी कि फकीर जब जब राजा से भिड़ता है, फकीर जीतता है। A direct contest between two-time MP from Amethi, who is also the Congress Vice President Rahul Gandhi, and an electoral novice, Kumar Vishwas. At present, the Congress party, after its defeat in Delhi, is keeping mum on the proposal. It feels perhaps that nothing can be taken lightly at this juncture. So, are we heading for a face-off in Amethi? And this contest that we are looking at could be called 43 versus 43. अरे साहब, अरुण जेटली की बात छोड़ दीजिए। हम तो अपने युवा हृदय सम्राट को तथाकथित युवराज से भी लड़ा सकते हैं, चिंता क्यों करते हो? It's this statement by Aam Aadmi Party MLA Manish Sisodia that began an instant comparison. A 43-year-old Kumar Vishwas versus a 43-year-old Rahul Gandhi. Listen into the full statement made by Manish Sisodia. Was this a statement made in jest or a sign of a fledgling contest? एक और खबर चल रही है कि वो कुमार विश्वास ने कह दिया हम अरुण जेटली के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अरे साहब, अरुण जेटली की बात छोड़ दीजिए। हम तो अपने युवा हृदय सम्राट को तथाकथित युवराज से भी लड़ा सकते हैं, चिंता क्यों करते हो? पहली बार बहुत वर्षों से नारा लगाया है। एक बार मैं चाहता हूं आप इस नारे को लगाएं। हमने लड़े हैं और जीत के दिखाया है। एक नारा हम सब आंदोलनकारी लंबे समय से लगाते रहे हैं, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे। Manish Sisodia's announcement has become a big issue of debate. Will this be a good contest? Will it work? Will the Aam Aadmi Party really take this fight right to the grand bastion of Gandhi family in Amethi? And most importantly, will it succeed? And the biggest of all questions, at this juncture after the defeat of Congress party in Delhi, can the Congress party and its vice president even afford to take the proposal lightly? A sad Sunday for the Congress. A 4-0 drubbing for the grand old party. The Congress party is non-existent in Delhi, isn't it? Just look at the spectrum. From this amazing. position, the Congress party has got... Do you see any green, ladies and gentlemen, on this spectrum? And across the entire region where the Congress party is strong, you find besides 4 or 5 seats, everywhere, the BJP and the Aam Aadmi Party just struggle and push the Congress party out. So this is certainly not a case of just traditional, non-traditional definition, and Rahul Gandhi should reassess out there the role of the central leadership of the Congress party in foisting, and he should also look here at the impact of the unpopularity of the central government. In Delhi, a political infant destroying the Congress fortress of Delhi. Three-time Chief Minister defeated by more than 10,000 votes. The frustration was only too visible. What happened to Sheila Dikshit in Delhi was the biggest shocker for the Congress party. The Congress had anticipated that AAP would debut with perhaps 1 or 2 assembly seats. But a stunning debut by Arvind Kejriwal. AAP not only managed to dislodge important ministers from their constituencies, but also gave the longest serving chief minister of the capital a run for her money. So now when Kumar Vishwas takes on Rahul Gandhi in Amethi, the Congress has decided to keep completely silent about it. In fact, there is a diktat from the party not to react on the matter. And the sense that we get from the Congress is that even though they're not talking, at this point, nothing can be taken too lightly.
कौन? कुमार विश्वास। वो क्या लड़ेगा? वो क्या लड़ेगा? क्या लड़ेगा? अरे वहाँ जोकर बहुत हैं, एक जोकर और पहुंच जाएगा। Other parties putting up any candidate against whom, this is none of our concern. We have nothing to react on that. Who is the candidate put up by other parties? How are we concerned about that? We don't attach any importance to such statements. आम आदमी पार्टी अपने आप को बहुत ज्यादा Whoever it is, Aam Aadmi Party or BJP putting up their candidate in a constituency is their choice. And I don't think that it has any political significance, or we don't take it seriously at all. Ajay, would you like to comment on this fight between Kumar Vishwas and Rahul Gandhi? No comments. No comments. Would you like to comment on AAP saying that Kumar Vishwas will contest against Rahul Gandhi in Amethi? No, right now, no. On Sunday, Rahul Gandhi did come out and speak to the media. The party had lost badly in 3 northern states. His focus still was the Aam Aadmi Party. I think the Aam Aadmi Party has involved a lot of people who the traditional parties did not involve. We are going to learn from that, and we are going to do a better job than anybody in the country and involve people in ways that you cannot even imagine right now. Was this a statement for the cameras, or did Rahul Gandhi mean what he said? Because the Aam Aadmi Party is putting his statement to immediate test. दिल्ली सरकार और हमारे बीच जो मुकाबला था, उसमें भाजपा नहीं हरा पा रही। दिल्ली के 3 मंत्रियों को आम आदमी पार्टी हरा चुकी है। पहले लड़े थे गौरव से, अभी तो ये अंगड़ाई है। सलमान खुर्शीद तो कहते थे गटर स्नाइप्स हैं, शीला दीक्षित कहती हैं कि ये मानसून के कीड़े हैं, अब बेनी प्रसाद जी कह रहे हैं कि हम जोकर हैं। एक भी लाइन इधर उधर करके तुमने कुछ भी पास किया तो इस देश की जनता उसे और तुम्हें दोनों को कूड़ेदान में फेंक देगी आने वाले सारे समय। बुलंदी का नशा सिमटों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। Meet the challenger, Kumar Vishwas, a singer, poet, performer, even stung recently in a sting operation. He's among the most vocal spokespersons of the Aam Aadmi Party. 10 बजे इस सरकार का विरोध करना जरूरी है। When we ask them, they say they know you as a kavi, एक पोएट के हिसाब से, कोई कहता है आम आदमी पार्टी के हिसाब से। आप अपने आप को कैसे देखते हैं? I was a poet, I am a poet and wish to remain as a poet up to the last breath. Because एक शायर होता है, लेकिन शायर जो है वो वक्त की आंधी से खबरदार जरूर होता है, क्योंकि कैफी आदमी ने कहा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खूह पे नहाती नहीं। तो I have penned so many of poetries, और before this moment मेरी जो सबसे मशहूर कविताएं थी, कोई दीवाना कहता है, मोहब्बत एक एहसासों की, ये उर्दू बज़्म है, ये लगभग हिंदुस्तान के हर युवा के मोबाइल में थी। तो मुझे लगा कि जिस यूथ ने इतनी पॉपुलैरिटी दी है, अगर अन्ना आंदोलन चल रहा है, अगर देश का सारा युवा जो है वो तिरंगा लेकर कहीं मौजूद है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी बात करने के लिए वहां जाऊं। और इस तरह से आप सबने देखा कि एक मोमेंट हुआ, वो मोमेंट फिर बाद में पॉलिटिकल हो गया, वहां से 2 रास्ते अलग अलग हो गए, तो इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। अब हो सकता है कि रोमांटिसिज्म की पोएट्री चली गई हो, महबूब का चला गया, लेकिन मुल्क का रोमांस आ गया। Kumar Vishwas tells us a little about his history. How a man who used to host musical functions, or mushairas as they are called, to becoming an anti-corruption crusader, to joining a political front, and now perhaps a political opponent to the country's strongest political representative. और हिंदुस्तान जो डेमोक्रेसी है, जहां किसी तरह की राजशाही नहीं है, वहां एक विशेष परिवार में आने की वजह से किसी एक व्यक्ति को यह मान लिया जाता है कि वो मेरे देश का फ्यूचर है। और मैं एक बड़ा वैलिड सवाल इन बच्चों से, साथियों से पूछना चाहता हूं। हम लोग बड़े खुश हुए कि प्रेसिडेंट ओबामा के सर्जन जनरल जो हैं वो इंडियन डॉक्टर हैं, उनके सबसे बड़े डॉक्टर, यानी कि प्रेसिडेंट ओबामा इंडियन बेटे की टैलेंट पे यकीन करते हैं। लेकिन हमारे देश की जो सबसे बड़ी महिला हैं, जो सबसे शक्तिशाली हैं, वो इलाज कराने के लिए विदेश जाती हैं। आप हमारे बेटे पर विश्वास नहीं करती और मैं आपके बेटे पर कैसे विश्वास करूं? मेरा देश चला लेगा। तो मैं किसी को हराने नहीं जा रहा हूं। अगर अमेठी मुझे टिकट मिलेगा तो मैं केवल अमेठी में एक सवाल छोड़ने जा रहा हूं कि मैं एक फकीर हूं,
मैं एक अध्यापक का बेटा हूं, मैं एक सामान्य कवि हूं, मैंने 100 रुपए में मुशायरा पढ़ा है, रोडवेज की बिना खिड़की की बस में चला हूं, और आज मैं कभी कभी चार्टर बस से भी जाता हूं, जो बुलाता है मुझे कोई आदमी। बिजनेस क्लास का बड़ा असर पड़ रहा है कि कुमार विश्वास बिजनेस क्लास में चलते हैं, उसमें मांगते हैं, आयोजक देता है तो चले जाते हैं। तो मैं ये मानना चाहता हूं कि मैं अपनी प्रतिभा और क्षमता से यहां तक पहुंचा हूं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं, जितने दिन मैं सड़क पर रहा, जितने दिन लाठियां खाई और जेल में रहा, उतने दिन क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो रहे या नहीं रहे, उतने दिन पार्लियामेंट में भी वो रहे या नहीं रहे। हम जो अगर नोट करें, आपकी और राहुल गांधी की उम्र शायद तकरीबन सेम है, इट इज 43। तो एज अ 43-year-old मैन, डू यू थिंक यू आर मोर एक्सपीरियंस टू हैंडल पॉलिटिक्स, और आपको लगता है कि उनका जो लेवल है पॉलिटिक्स का या राजनीति में, उस हिसाब से किसको आप बेहतर मानते हैं? मैं प्रशंसा के हिसाब से नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ अगर एक जनता के पर्सपेक्टिव से आप देखें, सेम एज के दो इंसान खड़े हैं अमेठी में, स्ट्रांग होल्ड अमेठी माना जाता है उनके लिए, आप उसमें जाते हैं, किस तरह से आपको लगता है कि लोग क्यों और किसको वोट करेंगे? नहीं देखिए, मैं ये सवाल लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो इतने बड़े व्यक्ति हैं कि अगर मैं लड़ने जाऊंगा तो मैं तो पहले मिनट में हार जाऊंगा। मैं कहने जा रहा हूँ कि आम आदमी जिसको चुनौती दी जाती है, जिसको ये कहा जाता है कि तेरी कोई औकात नहीं है, जैसे मैं अगर जा रहा हूँ, राहुल गांधी जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जनता से 60 फीट दूर से मिलते हैं, मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर गाँव सोने जा रहा हूँ। और मेरा घर वो किस लिए है, अमेठी मेरा घर किस लिए है? अमेठी मेरा घर इसलिए है कि मैं कवि हूँ और जायसी जायस के हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं के घर जाऊंगा, मैं पद्मावत लिखने वाले कवि के दरवाजे पे जाऊंगा। Coming up, we talk to the people of Amethi to find out what they make of this electoral battle. Welcome back to Politics Fast. In Amethi, the word is spread of Kumar Vishwas probably contesting against Rahul Gandhi. While the loyalists remain unmoved, there are others who feel that anti-Congress cyclone could hit the family bastion too. विशेष असर तो नहीं पड़ेगा, मुश्किल से 10% वोट कटेंगे उनकी, और इससे ज़्यादा नहीं। काफ़ी कुछ अंतर पड़ेगा। जिस हिसाब से आप पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया है, उस हिसाब से लगता है कि राहुल जी को यहाँ से दिक्कत आएगी। एक नई तरह की राजनीति और नई तरह की कार्यशैली विकसित करने की शुरुआत की है, और भारत के अंदर जो वैकल्पिक राजनीति का अभाव था, उस वैकल्पिक राजनीति की तरफ आम आदमी पार्टी ने एक कदम बढ़ाया है। सर, यहाँ तो जैसे गांधी परिवार का होता है, वो तो वहीं आंखें बंद करके लोग देते ही वोट, ठीक। लेकिन मान के चलिए अगर कोई अच्छा आदमी आ रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं कि राहुल गांधी को वोट मिले। अब आम आदमी के पार्टी अभी कोई संगठन तो है नहीं रायबरेली में और अमेठी में, लेकिन अगर बनाएंगे तो युवक उनके साथ जुड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। We also spoke to the Uttar Pradesh state representatives of the Aam Aadmi Party for their view on whether this contest is for real. कहने का मतलब ये है कि अगर अमेठी में कुमार विश्वास को लड़ाने की बात है तो सिर्फ हवाई बात नहीं, कहीं कुछ कॉन्क्रीट भी है। बिल्कुल, हम लोग ऑलरेडी संगठन के लेवल पे बहुत मजबूत हो चुके हैं यूपी में, और ये आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये बताइए कि राहुल गांधी दिल्ली में सक्सेस हुई एक अलग मैटर था, पर राहुल गांधी कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बड़े नेता हैं, काफ़ी काम है उनका, कई बार से वहाँ पे एमपी रहे हैं। लगता नहीं कि थोड़ा अनरियल सा चैलेंज है जो आप लोगों ने कहा है कि कुमार विश्वास को वहाँ से लड़ाएंगे? कितना सक्सेस की चांसेस कितना देखते हैं आप लोग? हम लोग कुमार विश्वास को लड़ाएंगे और पूरी क्षमता से जीतेंगे। राहुल गांधी का अगर मान लीजिए अमेठी क्षेत्र जैसे है, तो अमेठी क्षेत्र में राहुल गांधी को हम पछाड़ेंगे, इसलिए कि हमारी आम आदमी पार्टी नई पार्टी है और जनता हमको पसंद करती है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस के लोग तो ऑलरेडी कहने लगे, जैसे बेनी प्रसाद ने कहा कि कुमार विश्वास क्या है, सिर्फ एक और जोकर है, इस तरह की बात कही। तो ये ऐसा, तो आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस सीरियसली लेगी वहाँ पे अमेठी में? हाँ सर, कुछ महीने पहले ये कहा जा रहा कि सोनिया गांधी लेके आ रही हैं, और शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद क्या करेंगे। अरविंद ने क्या किया सबको मालूम है, 25,000 कुछ वोट से हराया उनको, बिल्कुल गायब कर दिया है, कहीं बची नहीं है कांग्रेस। तो वो यहाँ भी हम लोग करेंगे, कुमार विश्वास जी भी लड़ेंगे, और लड़ेंगे नहीं हराएंगे, और इतने ज्यादा मार्जिन से हराएंगे कि आप सोच नहीं सकते आप। At the local level, Congress workers have come out in a strong defense for their leader. They believe that the emotional connect is too strong for anyone to break into it. देखिए, अमेठी का इतिहास रहा है कि नेहरू गांधी परिवार से उनका रिश्ता मतदाता और नेता का नहीं होता। अमेठी का रिश्ता नेहरू गांधी परिवार से परिवार का होता है। अगर परिवार में कोई बाहरी आएगा तो मैं तो पड़ोसी हूं अमेठी का,
अमेठी वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन आपको तुम बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मैं लेता हूं। क्यों नहीं गंभीरता से लेना चाहिए? दिल्ली में भी तो पहली बार वो चुनाव लड़े, 28 सीटें जीत करके आए। तो जब कहते हैं कि हम यूपी में लड़ेंगे, बड़े नेताओं के खिलाफ लड़ेंगे, तो गंभीरता से क्यों नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं आप लोग गंभीरता से ले रहे हैं? नहीं, देखिए, आप और बीजेपी में पहले से कहता आया हूं कि ये ए और बी टीम है। ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की तरह है कि डिवाइड एंड रूल। वहां पे भी शीला दीक्षित को हराने के लिए दोनों साथ मिलकर उनको हराने के लिए दोनों लगे थे, और उन्होंने जहां तक कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि सरकार भी नहीं बना पाई। और जहां तक कुमार विश्वास की बात है, कुमार विश्वास जैसे बहुत से आए और इलेक्शन लड़े, राहुल जी या राजीव जी या किसी के खिलाफ भी, और वो अपनी जमानतें तक नहीं बचा पाए। उनका पूरी तरह स्वागत है और आए और वहां पे आके इलेक्शन लड़ें। अमेठी से आकर के वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल वो स्वतंत्र भारत है, वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो अमेठी आए, वहाँ के पर जरूर लड़े। और कांग्रेस पार्टी हर कैंडिडेट को सीरियसली लेती है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता है उसको भी सीरियसली लेती है, क्योंकि ये एक इलेक्शन है। और लेकिन ये विश्वास है कांग्रेस को पूरी तरह से कि अमेठी और रायबरेली में इनको जवाब देगी वहाँ की जनता। कुमार विश्वास जो सोच रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 3 महीने में 4 महीने में चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा क्रांति कर देंगे, तो उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली में भी वो पिछले 2-2.5 साल से लगे हैं, तब भी वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। और अभी तो उन्होंने पूरी उत्तर प्रदेश की जमीन ही नहीं नापी है। आपको इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। नहीं, मुझे आपको अपने अंदर आप पार्टी जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अभी तो उसकी कोई जमीन उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है। और अमेठी से ताल ठोक के वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, और इसके अलावा उनके पास कोई अभी एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है। और अमेठी से लड़ेंगे तो धूल चाटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। Back in Delhi, Kumar Vishwas is unfazed with criticism. Though still not clear whether this contest is for real, it doesn't stop him from quipping. विश्वास एक चीज है, क्योंकि गांधी फैमिली का स्ट्रॉन्ग होल्ड है अमेठी, आपका नाम उसमें डाल दिया है। पहली चीज, इसमें 2 सवाल है। पहला, राहुल गांधी है, एक नाम है, वो आप डिनाई नहीं कर सकते, वाइस प्रेसिडेंट है, काफी सपोर्ट भी है उनको। दूसरी चीज, उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा वहां पे अमेठी में? क्योंकि वहां के लोग मान के चलते हैं कि हम गांधी के पक्के हैं। अब क्या रिजल्ट होंगे वो कह नहीं सकते। दूसरी चीज, दिल्ली में आपने अभी कॉन्टेस्ट नहीं किया, क्या आपको लगता है नेशनल लेवल पे जब आप कॉन्टेस्ट करोगे तो आपको अप्रूवल मिलेगा? 2 सवाल शायद। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल जी में जो प्रशंसनीय बात है वो है उनके पीछे लगा हुआ गांधी। अगर वो सिर्फ राहुल हों तो शायद मेरे ख्याल से दिक्कत होगी। मैं ये मानता हूं कि राहुल जी जितने गांधीवादी हैं उससे शायद कम गांधीवादी मैं भी नहीं हूं। तो अगर मैं चुनाव लड़ने गया तो मैं हार जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन अगर जनता वहां चुनाव लड़ गई कि जनता तय करेगी कि राजवंश जीतेगा या फकीरी जीतेगी या आम आदमी जीतेगा, तो मुझे लगता है कि मैं वहां से जीत कर आऊंगा। और राष्ट्रीय राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात होगा कि केवल किसी घर में पैदा हो जाने की वजह से आपको प्राथमिकताएं नहीं मिलेगी। We now raise some questions to Manish Sisodia, the one who in fact had made that proposal in the first place. We asked him, does he still stand by that proposal that he had made during the public meeting? And if it were to be a contest, how confident is the Aam Aadmi Party of a victory, considering that the Congress is well aware of the emotional connect of the people with the Gandhi family in Amethi? कुमार विश्वास के बारे में इतना तो भरोसा है कि वो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वो सीट जीतेंगे। देश में कहीं भी चुनाव लड़ें वो सीट जीतेंगे, वो राहुल गांधी के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ भी हो। उनका अपना एक ऑरा है, उनकी अपने एक फैन फॉलोइंग है, प्लस पार्टी का अपना एक भरोसा है। लेकिन वो कहाँ से लड़ेंगे वो एक उस दिन का रिमार्क अभी पार्टी में डिस्कस नहीं हुआ था। मैंने, क्योंकि एक अरुण जेटली जी के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर बहुत तोड़ा था कि आप सिर्फ बीजेपी के बारे में बोल रहे हो, तो हमने कहा कि हम कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ भी लड़ सकते हैं और कांग्रेस के फेस के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। वो टॉप, और ये हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है हमेशा कि हम एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, नहीं साहब बड़े पॉलिटिशियंस के खिलाफ अपने बड़े पॉलिटिशियंस को मत उतारिए, जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनके भी उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी जीतने दीजिए और इधर के सीनियर लीडर्स को भी जीतने दीजिए। बाकी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए टफ फाइट रखिए, अपने लिए कंफर्ट जोन बना के रखिए, हम इसके खिलाफ हैं। With less than 5 months to general elections, new kids are on the block. And with a strong and established anti-Congress wave, can the Congress be too sure about any possibility